ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਮਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 135 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ 25 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ 202 ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ देखिए, पहले ये सरकार 3 एंटी फार्मर बिल लेके आई, 1.5 साल तक किसान सड़कों पे रहा, संघर्ष करता रहा, पंजाब ने अगुवाई की और उसके बाद वो जो तीनों कानून वापस लेने पड़े सरकार को क्योंकि किसान की रोजी रोटी का सवाल था। उसके बाद सर अग्निवीर के माध्यम से लाखों नौजवानों का जो है फ्यूचर भविष्य से खिलवाड़ किया गया जो देश की सेवा करने चाहते थे और नौजवानों ने कितने समय लंबे समय तक और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अग्निवीर के माध्यम से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बल्कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं नौजवान उनको भी रोका जा रहा है। उसके बाद सर अभी पूरे सेशन के दौरान हमने देखा कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील हुई है, इसके माध्यम से पूरे देश के किसानों को खासकर जो डेयरी किसान हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म करने की साजिश जो हो रही है और अभी तक सरकार नहीं बता पाई क्या दबाव है। और अब जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के माध्यम से वो मजदूर जो इस देश की बुनियाद है सर, इस देश की डेवलपमेंट में, इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा अगर योगदान है किसी का तो वो हमारे मजदूर भाइयों का है। लेकिन जिस तरीके से इस कोड के माध्यम से चाहे वो समय की बात हो 8 घंटे से 12 घंटे और मुझे तो लगता था और इसको डिसिप्लिन करने की जरूरत थी, उनको तो परमानेंट रोजगार देने की जरूरत थी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 300 एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री से 300 से कम है, 299 भी है तो विदाउट नोटिस उनको निकाल दिया जाएगा। सर ये कितना बड़ा अन्याय है उस वर्ग के साथ सर जो सबसे ज्यादा मेहनत इस देश के लिए करता है और जिसको जरूरत है उसी वर्ग को जरूरत है। आज सरकार को चाहिए कि उसकी बेहतरी के लिए काम करे।
इसके साथ अगर उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है सर, उनकी ट्रेड यूनियन, उस पर भी लगाम लगा दी गई सर। ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपने अधिकारों की वो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जिस तरह की इसमें पैमाना रखा है कि किसी भी यूनियन के अगर 50 से कम मेंबर है तो वो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, ये तो सरासर अन्याय है सर। ये मुझे लगता है जो फेडरल हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है सर। इसी तरीके से सर आज जरूरत थी कि उनको जो मिनिमम वेजेस है वो एक मिनिमम वेजेस जो है उनके लिए निर्धारित किया जाता सर, लेकिन इस कोड के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अमेंडमेंट कोड 2026 है, मिनिमम वेजेस जो है वो भी खत्म कर रहे हैं। हाँ, आज तो जरूरत थी इसको प्रिस्क्राइब करते एक पॉलिसी बनती, जो मजदूर है अनऑर्गेनाइज तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको एक मिनिमम वेज दिया जाता। तो मुझे लगता है ये जो कोड है सर, ये पूरी तरीके से जो अमेंडमेंट कर लेके आ रही है सरकार, ये मजदूरों के, गरीबों के खिलाफ है। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए और मैं इसके विरोध में यहाँ खड़ा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पंजाब के किसानों की परफॉर्मेंस देखकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 4713 करोड़ से 9050 करोड़ कर दिया है। ये एआईएफ किसानों को, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है, और किस लिए मिलता है? कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्ट, ऑटोमेशन, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि एफपीओ को मिलता है, लेकिन पंजाब में 2-3 एफपीओ ही एक्टिव हैं, और आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों, दे आर द हाईएस्ट debt burden per household in Punjab and Haryana is over 2 lakh rupees per household, one of the highest in country। तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है, इसको, इसमें देखिए ना कोल्ड चेन लग सकता है, ना कोल्ड स्टोर, ना साइलोज तो लग ही नहीं सकते। तो इसका क्या प्रावधान कर सकते हैं कि इसको 5 करोड़ किया जाए लिमिट?